So good morning once again. We are doing differential equations and we have already completed first question of exercise 6.3. Now we are going to start with second question. Question number 2 is solve the following differential equation. So first time we are going to solve the differential equation. Okay. So let me write down the first question. They have given a differential equation dy by dx is 1 plus y square upon 1 plus x square. Okay. Now, the first method to solve differential equation. The first method to solve any differential equation is called as variable separable form. Variable separable form. Yes, what does it mean? It means, see, you have dy by dx, right? अभी तक कभी भी हमने dy by dx को अलग नहीं किया था, but now while solving differential equation, dy by dx का dx like a normal denominator can go to the right hand side. तो dy इधर रह सकता है, dx उधर जा सकता है. तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है जहां पर dy होगा न्यूमरेटर में, वहां पर उसके साथ ओनली y के टर्म्स या कांस्टेंट, एंड जहां पर dx होगा न्यूमरेटर में, वहां पर ओनली x के टर्म्स होने चाहिए. अगर ऐसा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाते हो तो हम लोग बोलते हैं कि इट्स इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. एंड इफ इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, we can solve that differential equation. Here, if I look at the question, first I will think of multiplying, cross multiplying, so that dy and dx can be separated. So it can be like this: 1 plus x square इधर गया and dy equal to 1 plus y square into dx. नाउ जहां पर dy न्यूमरेटर में है, ठीक है, जहां पर dx न्यूमरेटर में है, वो बता देगा कि यहाँ पर y होना चाहिए, यहाँ पर x होना चाहिए. तो यहाँ पर y का टर्म होना चाहिए, बढ़िया, तो x का है, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेजेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई, और ये यहाँ पर जाके होगा 1 अपॉन 1 plus x square dx. Have you all understood these two steps? And I'm saying that now at this step, I have converted them in a variable separable form. Please raise your hands. Have you all understood? Okay. So once the differential equation gets converted into variable separable form, the next step is integrate both sides with respect to their variable. अभी तक का क्या होता था, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब यहाँ पर dy है, यहाँ पर dx है, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद, इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x. यस, तो इंटीग्रेशन का स्टेप कब आया, आफ्टर यू अचीव दिस स्टेप दैट द वेरिएबल्स आर सेपरेटेड. सो इंटीग्रेटिंग both sides. So it is like integration of 1 upon 1 plus y square dy, integration of 1 upon 1 plus x square dx. ठीक है,
अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1/1 + y², ये किसका इंटीग्रेशन है? तो हमको ये सिंपली पता चलता है कि ये तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स y इक्वल टू 1/1 + x², दिस इज tan इनवर्स x, क्योंकि डेरिवेटिव यही होता है, प्लस सी, प्लस सी. So this is the integration, the solution of the given differential equation. Yes, this is the solution of the given differential equations. तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में you have to separate them and make dy term one side, dx term one side. अगर वो हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेट बोथ साइड्स करते हैं और फिर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y अलग से, विथ रिस्पेक्ट टू x अलग से. हैव यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट प्रॉब्लम? ओके, चलिए आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको बॉक्स पर डाल देते हैं. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. जनरल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्लस सी है ना. दिस इज द जनरल solution. Okay, next question now. Second one, क्या है टेक्स्ट बुक में लिखते हैं? y minus x dy/dx equal to 0. Okay, so how we will do this now? I think ये थर्ड है, सेकेंड वाला log dy/dx से नो प्रॉब्लम. थर्ड कर लेते हैं पहले, अब लिख दिया है तो. चलो कैसे करेंगे? सबसे पहला we will try to convert them into variable separable. तो सबसे पहले ये जो पूरा नेगेटिव x dy/dx है उसको मैं वो साइड लेकर गया, तो y इक्वल टू मिलेगा x dy/dx. ठीक है, तो डेफिनेटली dy/dx है तो dy तो यहीं रह जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर वाला टर्म उधर जाएगा. तो मैंने dx को इस साइड भेजा, तो हो जाएगा y dx इज x dy. अब इसके बाद जहाँ पर dy है वहाँ dx है, वहाँ पर x का टर्म आएगा, जहाँ dy है वहाँ पर y का टर्म आएगा. तो x को इधर भेजूंगा तो 1/x हो जाएगा, और y को उधर भेजूंगा तो ये 1/y हो जाएगा. तो आपको नहीं लगता वी हैव अचीव द वेरिएबल सेपरेबल स्टेप? यस स्टूडेंट, रेज योर हैंड्स इफ अंडरस्टूड. फिर इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग both sides with respect to their variable. So it will be integration of 1/x dx and integration of 1/y dy. अब इन सब का इंटीग्रेशन निकाल लो, तो 1/x का इंटीग्रेशन
लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स 1/y विथ रिस्पेक्ट टू y का लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस सी। बट अब ये सब लॉग में है तो हमने याद है ना, जब सब लॉग में होता है तो हम इसको भी लॉग सी ले लेंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। ऐसे आंसर हो चुका है, बट सिंस इट इज इन लॉग आई कैन सॉल्व एंड कैंसिल द लॉग, राइट। तो ये लॉग एक्स को ऐसा ही रखा, राइट में इट इज़ लाइक लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए बी हो जाएगा, तो वाई इंटू सी सी वाई हो जाएगा। फिर दोनों साइड को कंपेयर किया तो लॉग लॉग डिलीटेड, तो एक्स का वैल्यू सी वाई हो जाएगा, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, यस। वेरिएबल सेपरेबल करना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट बी इन हरी ऑफ राइटिंग। समझ के लो पहले, मैं पूरा पीडीएफ भेजूंगा। log of dy by dx is equal to 2x plus 3y. Log of dy by dx is equal to 2x plus 3y. So again we are going to try the same thing. We will try to convert them. c एक ही साइड आएगा तरन, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली दोनों साइड c है। इधर भी जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इधर भी c आया, इधर भी c आया, फिर ये c को उधर लेकर गए, तो C1 इधर का C1 था, इधर C2 था, दोनों को क्लब करके C लिख दिया। तो दोनों जगह C लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह ही C लिख देंगे राइट साइड। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कैसे करेंगे? अब ये तो लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो पहले तो ये लॉग को हटाना पड़ेगा, नहीं तो लॉग नहीं हटाएंगे तो डी वाई और डी एक्स सेपरेट कैसे होगा? सो वी नो in 11th standard we have learned how to convert equation from logarithmic form to exponential form. So if you remember, if base is not given, base is always e. तो अगर मैं log को उस साइड लेके जाता हूँ तो log का जो पावर है वो e उधर चला जाता है, राइट, और log निकल जाता है। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड। डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा और ये हो जाएगा ई रेस टू, जो भी राइट साइड में रहेगा, 2x प्लस 3y। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस। ये लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी वहाँ तो एक ही टर्म है ई रेस टू 2x प्लस 3y, तो हमको अगर एक्स वाई को सेपरेट करना है तो पहले उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ई रेस टू 2x प्लस 3y है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू 2x प्लस नहीं इंटू, क्योंकि इंटू होता है तभी तो पावर ऐड होता है ना, इंटू होता है तो ही पावर ऐड होता है। व्हाट परिजात यू सेड नो सर, नॉट अंडरस्टूड, और किसके लिए नो सर बोला आपने? 2x प्लस 3y, यस। व्हाट नॉट अंडरस्टूड? In physics also we do like this calculation. In 11th standard we have learned this in the logarithm chapter, that whenever log goes to right hand side, जो log का बेस होता है वो log निकल जाता है और ये बेस है वो इधर आ जाता है। ठीक है, that's the property of log. Okay, now this is e raised to 2x, e raised to 3y. Now this denominator dx is there,
इट विल गो टू द राइट। अभी वो dx उधर जाएगा, यानी राइट वाला dx का टर्म होगा, तो फिर e⁻³ को इधर भेज देते हैं क्योंकि इधर dy का टर्म है। सो इट विल बी 1/e⁻³ हो जाएगा, डिवाइड करेगा ना वो, और यहाँ पर dy रहेगा, x का टर्म ऐसे ही रहेगा और उसके साथ dx चला जाएगा, राइट। सो नाउ डोंट यू थिंक इट इज इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? बस e⁻³ को ऊपर ले लेता हूँ, e⁻³ dy हो गया, and this is e⁻² dx हो गया। Okay, so now after achieving this step we write integrating both sides. So if I integrate, it will be like integration of e⁻³ dy, integration of e⁻² dx। ओके, अभी e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो इसका भी वही होगा, ओनली वी विल डिवाइड इट बाई कोइफिशिएंट ऑफ x। याद आ रहा है, तो कोइफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर है -3, इक्वल टू e⁻² का इंटीग्रेशन e⁻² अपॉन 2, yes, and then plus c। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द इंटीग्रेशन वाला पार्ट? वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता इंटीग्रेशन कैसे आया, वो तो अभी आपको इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया है, तो ये तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस। ऐसे भी छोड़ सकते हो, एंड यू कैन इवन सिंप्लीफाई ऑल्सो। सो सपोज इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए पहले इधर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज e⁻³ अपॉन 3। पहले मल्टीप्लाई इस साइड नहीं हो सकता क्योंकि वो अपॉन 2 एक ही टर्म में है ना, 2c अपॉन 2 हुआ। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2e⁻³ इक्वल टू 3e⁻²x plus 3 2s are 6c, but we know that even 6c is a constant ना, समझ रहे हो क्या, तो कांस्टेंट है तो उसको सी ले लो ना, या तो ऐसा करो पहले c1 दे दो, बाद में लिख दो कि 6c1 इज c, बिकॉज एनी वेज इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। सॉरी -3 है ना, तो इधर मैंने 3 लिख दिया गलती से, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -6c1 को प्लस c लिख दो, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी ये इस वाले टर्म को हम इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली 2e⁻³ -3 will come here, it will plus 3e⁻²x equal to c is the general solution. Understood everyone? Okay. थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो स्टेप्स था वो इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे हमने कन्वर्ट किया, पावर कैसे किया एंड कैसे सेपरेट किया, इट वाज नॉट दैट इजी लाइक इन द लास्ट 2 प्रॉब्लम्स जैसे हमने कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, sec² x tan y dx प्लस sec² y
tan x dy इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने करेंगे। तो पहले तो इधर डी एक्स न्यूमरेटर में, इधर डी वाई न्यूमरेटर में, किसी एक को दूसरे साइड तो भेजना ही पड़ेगा। तो पहले इस पूरे डी वाई को उस साइड भेज दिया मैंने। तो ये हो जाएगा तो ये जब तक वो अलग अलग नहीं होगा तब तक हम कैसे फिर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। अभी दिख रहा है कि डी एक्स से इधर एक्स का टर्म, डी वाई से वाई का टर्म। तो एक्स का मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स चलेगा यहाँ पर, टैन वाई को उधर भेजो और इधर से टैन एक्स को लेकर आओ। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़, उधर से टैन एक्स आया, डिवाइड करेगा यहाँ पर माइनस सेक्स स्क्वायर वाई एज इट इज़, यहाँ से टैन वाई गया, डी वाई हो गया। नाउ डोंट यू थिंक इट इज़ इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म स्टूडेंट? शेयरिंग थोड़ा ऑफ हो गया, 1 मिनट कर रहा हूँ।